शुरू करें? Shall we? Good afternoon, ladies and gentlemen. We would first do it in English and then I will repeat it in Hindi. You know, bank frauds are tumbling out of the closet faster than you can say Jack Robinson. While this Modi-Choksi tango is still going on, reports have emerged about another alleged bank fraud. There is some company called Rotomac, some gentleman called Mr. Kothari. There are reports in the public space that he owes 800 crores to a consortium of Indian banks. And apparently, the gentleman is untraceable. His offices are closed. And the list of such frauds just keeps growing by the day. Before we address certain very fundamental questions, as an aside, let me just tell you that it's ironic that the Punjab National Bank, in which this Modi-Choksi scam has taken place, won the Vigilance Award for 2016-17. Apparently, the award was given in Hyderabad by the Chief Vigilance Commissioner of India. So this is the kind of vigilance which is being exercised in the banking sector. But to more fundamental questions that pertains to the health of the Indian banking sector. As of 30th September 2017, the total non-performing assets of all Indian public and private banks was 8,36,780 crores, 82 crores. %7% of these NPAs are leading Indian corporate houses who owe this money, this 8,36,782 crores to the Indian banking system. India ranks 5th out of 39 major world economies in NPAs. The only 5 countries which are ahead of India are the PIGS countries. That is Portugal, Italy, Ireland, Greece, and Spain. But what is even more germane is the extent of banking fraud which has taken place in the last 5 years. The data which has been released by the Reserve Bank of India shows that 61,260 crores is the extent of bank fraud. Now, an NPA and a bank fraud is different. An NPA is when you are unable to service the interest on a loan for 2 quarters. A bank fraud is when you loot and scoot with the money. So therefore, the extent of bank fraud
over the past 5 years is 61,260 crores, according to the Reserve Bank of India. And out of these 4 years, 5 years, 4 years the NDA BJP has been in government. The linkages between these alleged fraudsters and the highest echelons of the BJP, of the NDA BJP government, raises some very serious questions about the health of the Indian economy. Mehul Bhai, Nirav Modi, and as I said, the list is growing. And therefore, the Congress party would like to demand that since the budget session of Parliament is going on, and the second session of the second part of the budget session is scheduled from the 5th of March, that the NDA BJP government immediately brings out a white paper on the health of the Indian economy, on the health of the Indian banking sector. Government must come out with a white paper on the health of the Indian banking sector. Number 2, all banks, public banks and private banks, must declare and publish a complete list of their non-performing assets as of 31st of December 2017, which is the close of the third quarter, the third financial quarter, so that people know that who owes how much money to which bank. Because after all, the money in the banks is the money of the people. And people have a right to know as to which promoter, which company has incurred how much non-performing assets as of 31st of December 2017. The third thing is that all banks must publish and declare the list of banking frauds which have taken place. Because to the 61,000 crores which RBI has disclosed, if you add the 21,000 crores, and which is growing every day, of the PNB fraud, the figure comes to about 80,000 crores. So all banks must disclose that what is the extent of banking fraud which has taken place in the past as of 31st of December 2017. You see, the ironic thing is that the UPA government during its 5 years brought transparency, brought openness to the Indian economy. It brought the Right to Information Act, which allowed people to peer into the opaque innards of governance. And the NDA BJP government in the last 4 years has only brought secrecy. It has brought opaqueness. So the Prime Minister will not tell you which private people are traveling with him on his foreign trips, because it is a state secret. Private people traveling on taxpayers' money with the Prime Minister, despite CIC orders, will not be disclosed because it is a great state secret. The Defense Minister will not tell you at what price the Rafale has been bought because it is a state secret. The Finance Minister will not tell you what is the health of the Indian banking sector because it is a state secret. And the Information and Broadcasting Minister will not tell you about her educational qualifications because that is also a state secret. But the only open secret is that people of this country are saying, not now and never again.
मैं जल्द से इसको हिंदी में कर देता हूं। ये बैंकों के घोटाले की या घोटालों की जो फहरिस्त है वो रोज लंबी होती जा रही है। अभी ये छोटा मोदी चोकसी वाला प्रकरण चल ही रहा है कि कुछ और खबरें सार्वजनिक हुई हैं कि कोई कंपनी है रोटोमैक, कोई उनके प्रमोटर हैं कोठारी साहब, उन्होंने 800 करोड़ रुपया जो नेशनलाइज्ड बैंक से उनसे लिया है और शायद उनका भी कोई अता पता ठिकाना नहीं है। और इस सब में हास्यास्पद बात यह है कि जिस बैंक में छोटे मोदी और चोकसी का घोटाला हुआ है, पंजाब नेशनल बैंक, उसको 2016-17 में विजिलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हैदराबाद में भारत के चीफ विजिलेंस कमिश्नर ने उनको विजिलेंस का खिताब दिया था कि आपने बहुत बेहतर काम किया है बैंक में चोरी चकारी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। पर जो इस घोटाले से कुछ बुनियादी सवाल सामने आते हैं, हम उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं। सबसे पहला और अहम सवाल यह है कि 30 सितंबर 2017 तक जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की रकम थी वो 8,36,782 करोड़ थी। तो 8,36,782 करोड़ रुपया भारत के जो कॉरपोरेट्स हैं, जो पूंजीपति हैं, धनपशु हैं, सूट बूट वाले हैं, 77% पैसा ये उनका है जो उनको बैंकों को वापस करना है। पर उसके साथ साथ जो इससे और बड़ी संवेदनशील बात है वो ये है कि आरबीआई ने खुलासा किया है कि 61,260 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड पिछले 5 वर्ष में हिंदुस्तान में हुआ है और 4 वर्ष से एनडीए भाजपा की सरकार है। और इसमें वो 20,000 रुपया नहीं, 20,000 करोड़ रुपया, 21,000 करोड़ रुपया नहीं शामिल है जो जिसके प्रकरण, जिसकी जो पलतियां हैं वो अब खुल रही हैं। सो कुल मिलाके लगभग 80,000 करोड़ रुपए का बैंकों से गबन हो चुका है। और एनपीए और फ्रॉड में फर्क है। एनपीए आपका अकाउंट तब हो जाता है अगर आप 2 क्वार्टर का जो ब्याज है उसको नहीं चुकाते। फ्रॉड का मतलब यह है जो आप बैंकों का घोटाला करके पैसा लेके भाग जाते हैं। तो इसलिए बहुत एक बुनियादी सवाल आज भारत की जो बैंकिंग प्रणाली है, जो बैंकिंग व्यवस्था है, उसके ऊपर खड़े हो गए हैं। क्योंकि ये जितने कथाकथित महारथी हैं जो बैंकों का पैसा लेके भाग रहे हैं, इनके जो तार हैं वो सरकार में जो आला पदों पर बैठे लोग हैं उनसे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, जैसा कि पिछले 1-2 दिन में सार्वजनिक हुआ है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ये मांग करना चाहती है, क्योंकि बजट सत्र चल रहा है और उसका दूसरा चरण 5 मार्च को शुरू होगा, कि सबसे पहले तो सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए
जो भारत की बैंकिंग प्रणाली है उसकी परिस्थिति को लेकर। दूसरा अहम सवाल यह है कि सारे बैंकों को, और यह वित्त मंत्री की जिम्मेवारी बनती है, यह उनका उत्तरदायित्व बनता है कि सारे बैंकों को यह निर्देश दिया जाए कि 31 दिसंबर 2017 तक उनके बैंक में जितने अकाउंट, जितने खाते एनपीए हैं और किन लोगों के वो खाते हैं, कौन सी वो कंपनियां हैं, उनके कौन प्रमोटर हैं, उनकी सबकी जो सूची है उसको सार्वजनिक करना चाहिए। क्योंकि बैंकों में पैसा जनता का है, लोगों का पैसा इन लोगों को, इन पूंजीपतियों को दिया जाता है। तो लोगों को, भारत के आवाम को यह जानने की जरूरत है कि उनके पैसे को कौन कौन सा पूंजीपति, कौन सा धन पशु लेके भाग गया है। तीसरा और उससे अहम बात यह है कि जो बैंकों का फ्रॉड हुआ है, ये 61,260 करोड़ और उसमें 21,000 करोड़ और जोड़ा जाए लगभग 80,000 करोड़ रुपए का जो बैंकों से घोटाला हुआ है, गबन हुआ है, जिसकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पुष्टि की है। वो कौन कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने ये घोटाला किया है, उनके क्या नाम हैं, कौन सी कंपनियां हैं, प्रमोटर्स के क्या नाम हैं, ये सब हर बैंक की वेबसाइट के ऊपर डालने की जरूरत है। क्योंकि ये 61,260 करोड़ रुपए की रकम जो आरबीआई ने सार्वजनिक की है, ये उसी बेसिस पे होगी जो सूचना बैंकों ने आरबीआई को दी है। तो इसका मतलब हर बैंक के पास वो पूरी सूची है कि किसने, किस कंपनी ने, किस व्यक्ति ने, कौन से प्रमोटर्स ने बैंकों के साथ घोटाला किया है। वो सारी जो जानकारी है उसको सार्वजनिक करने की जरूरत है। और 31 दिसंबर 2017 तक जिस जिस बैंक में भी, चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे निजी बैंक हो, जो जो गबन किया गया है, जिसकी जानकारी उन्होंने आरबीआई को दी है, वो सारी जानकारी वेबसाइट पे डालनी चाहिए। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इस देश में एक बहुत विचित्र और अद्भुत परिस्थिति बनी है। और वो परिस्थिति ये है कि जब 10 साल तक यूपीए की सरकार थी, हम सरकार में पारदर्शिता लेके आए, एक ओपननेस का हमने कल्चर प्रमोट किया, सूचना का अधिकार लेके आए। और पिछले 4 वर्ष में ये सरकार क्या लेके आई है? सिर्फ हर चीज को गोपनीय रखना चाहती है। एक सीक्रेसी का माहौल इस देश में, एक भय का माहौल, गोपनीयता का माहौल इस देश में बनाना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी के साथ विदेशी दौरों पर टैक्स पेयर्स के पैसे पर कौन से निजी व्यक्ति जाते हैं, आज वो भी स्टेट सीक्रेट है। प्रधानमंत्री जी बताना नहीं चाहते, उनका कार्यालय बताना नहीं चाहता सीआईसी के ऑर्डर के बावजूद कि कौन से वो निजी व्यक्ति हैं, कौन से वो धन पशु हैं, कौन से वो पूंजीपति हैं जो प्रधानमंत्री जी के साथ विदेशी दौरों पर गए हैं। रक्षा मंत्री इस देश की हर मुद्दे के ऊपर बोलने के लिए तैयार हैं, बेबुनियाद लांछन भी लगा देती हैं, पर वो देश को यह बताना नहीं चाहती कि राफेल जहाज कितने में खरीदा गया, क्योंकि वो स्टेट सीक्रेट है। हर चीज के ऊपर बखान करने के लिए तैयार हैं, पर जो बुनियादी सवाल हैं उन बुनियादी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि राफेल कितने में खरीदा गया। इस देश के जो वित्त मंत्री हैं वो इस देश को यह नहीं बताना चाहते कि देश की बैंकिंग प्रणाली का आज हाल क्या है।
आज तक एक बयान नहीं आया वित्त मंत्री की तरफ से, आज तक एक बयान नहीं आया वित्त मंत्री की तरफ से। इतना बड़ा घोटाला भारत की बैंकिंग प्रणाली में हो गया है। और अजीब बात है, वित्त मंत्री रक्षा के मामलों पे बोलते हैं, रक्षा मंत्री वित्त के मामले पे बोलती हैं। आई मीन दिस इज द हाइट ऑफ एब्सर्डिटी। और इस देश की जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं, वो ये नहीं बताना चाहती कि उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कि वो भी स्टेट सीक्रेट है। पर एक ओपन सीक्रेट जरूर है, और वो ओपन सीक्रेट ये है कि इस देश ने अब तय कर लिया है कि ये मोदी सरकार कभी नहीं। ये ओपन सीक्रेट आज पूरे देश में जग जाहिर है। The floor is all yours. Thank you very much for coming in on a Sunday.